بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال لالا عزت خان۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا جی۔ فتح جنگ دے وچ جڑے میں جان والے دیکھیں، جڑے لوگ تقریباً 500-600 کنال زمین تھے انہاں کاش چھوڑ دی، کھاد مہنگی، ڈیزل مہنگا، اس کے بعد جناب من ہر چیز مہنگی، تو جب واری آتی ہے گندم پک جاتی ہے، اس کے بعد جناب ایک تو ضلع بندیاں ہو جاتی ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ 2800 سے اوپر لگانا ہی نہیں، 2800 کا پیزا آ جاتا ہے، تو کئی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ بڑے آج ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، کیا کہیں گے اس میں؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا دل و جان سے شکر گزار اور مشکور ہوں کہ میں 5-7 سال سے جی آپ کو کہیں چوبر یہ اٹے والا معاملہ تھوڑا سا بعد میں کروں گا، آج میں معذرت کے ساتھ، آپ نے مجھے چھیڑنا نہیں ہے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ اور آج میرا دل پٹنے کو آ گیا، ٹھیک ہے، جو 7 سال سے آپ لگا ہوئے۔ آج سارا دنیا میں ایک ہفتے سے دیکھتا ہوں بڑے بڑے چینلوں کو درخت پہ یاد آ گیا، درخت کٹ گیا، ناگیز کٹ گیا، درخت ادھر کٹ گیا، درخت ادھر کٹ گیا، درخت ادھر کٹ گیا۔ آپ اگر میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں آنیر 7 سال سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، بالکل آپ نے کہا پوشیدہ درخت جو ہے نقصان دہ، اس کو سکے کاٹو، جن درختوں میں بجلی کے تار گیا ان کے نوٹس لو، یہ نقصان دہ بنتے، بارش ہوتے، جو آپ نے روڈوں کے اوپر دیکھے کئی گاڑی یہ درخت گرے گا، گاڑی نیچے آئے گا، اس کے شاخ تراشی کرو۔ آپ نے جناب ڈکنوں پہ کام کیا، آپ نے جو بجلی کا یہ کمبے نہیں ہے یہ زمین سے 2 فٹ اونچا کاٹ دیتے، آپ نے ان پہ پروگرام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹی مور بڑی بات، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ان درختوں پر آپ نے اسلام آباد کے اندر درختوں کے کٹائی بے دریغہ ہو رہے، آگ ہر وقت لگا ہوتے، دھواں ہے، ماحولیات کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خدا گواہ ہے اس پر، میں نے آپ کے درجنوں ویڈیو دیکھے اور کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ کیا، لیکن افسوس سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب ایک ہفتے سے مقابلے کا رجحان شروع ہو گیا، کیونکہ بڑے چینل پر آ گئے، چلو اس کو شاباش ہے، ہم اس کو نہیں کرتے، آفرین ہے روپ کلاسا کو، آفرین ہے، اور جو بھی ہیں، لیکن آج اسمبلی کے اندر بھی ہر ممبر اور ہر بندہ اسی کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ بھائی بحث کرنی ہے، ایک دوسرے کو نیچے لگانے پر تلا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ریزلٹ بھی دینے، کچھ بھی نہیں آنا، کوئی ذمہ دار بندوں کو ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، اس کو جو نا بلیک لسٹ کرو، اس سے قرضہ پورا کرو، کوئی ڈی جے ڈائریکٹر ذمہ دار ہے اس کو غرق کرو، اگر کسی نے ناجائز کے ایک سوری کر لو، یار دستے میں ہو گیا، اچھا آتے اب آپ کیا ٹیم، چلو یہ تو ماحولیات کی بات ہو گیا۔ غریب آدمی مجھے بتاؤ جس کے 700 روپے دیہڑی ہے، اس کو ماحولیات کا کیا پتہ ہے؟ جب آپ نے اس کے لیے اسلام آباد کے اندر با خدا 590 روپے 20 کلو تیلا اس 4 دن میں مہنگا ہو گیا۔ نہیں اب اس پہ وہ تو ہو گیا، وہ تو پھر اب اس پہ بعد میں آتے ہیں، اگلا آتے ہیں جی ایک اور پروگرام۔ یہ نہیں، میری بات سنیں، آپ نے اب وہ تار چھیڑ دی ہے میری، میں چھوٹا سا کلپ ہے پہلے وہ دکھاتا ہوں۔ بالکل دکھاؤ۔ ایک کوئی 8-9 مہینے پہلے جیڑیاں سی ڈی اے دے وچ ایک پلان ہے، گیس دی پائپ گزرنی، سیوریج کے تو گزرنی، واٹر سپلائی کے نہیں گزرنی، آپ کلپ دیکھا ہے؟ وہ پہلے یہ کلپ دیکھیں جی۔ السلام علیکم خان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا، یہ جی دیکھ سکتے ہیں جی، اور یہ دیکھ لیں گے ابھی بارش ہے، اور یہ دیکھیں نیچے تاریں بھی، اور یہ پائپ استعمال ہو رہا ہے جی، بارش بہت زیادہ ہے جی اس وقت، اور میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے ساری یہ تاریں۔ ناظرین دیکھیں جی۔ ملک صاحب آپ کا ایک اور ایشو تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اور آپ موقع پر بھی پوچھا ہے کہ کم از کم 2005 سے پہلا واقعہ ہے، ادھر یہ کیا نام ہے زراعتی ترقیاتی بینک کا بہت بڑے
बिल्डिंग और वो खड़ा है हाँ हाँ और खाली वीरान पड़ा, कोई पंखा ले गया और कोई दरवाजा ले गया, कोई झोला ले बिल्कुल गया, ये और आपने उस पर 3-4 प्रोग्राम पोट्री सारे इकट्ठे हुए हैं, उसका भी 5-6 साल हो गया। बिल्कुल किसी आपने कहा कि भाई ये हुकूमत से दरखास्त है, जिम्मेदारों से दरखास्त है कि भाई जिन लोगों का है उनके लिए कारामद नहीं तो सरकार का माल है, ये गरीबों को दो, जिनके मकान गिरने वाले हैं उनको दो, जिनके पास छत नहीं है उनको दो, जो प्रेस क्लब के सामने बैठे छत उनके पास नहीं है मांग रहे उनको दो। कोई टस से मस नहीं हुआ। वो वाकया किधर आ गया? अभी आज तीसरा दिन है जो G72 में आपका एक और प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, मुझे याद है आपने एक प्रोग्राम उस पे किया था, बल्कि 2 किया था, कि भाई ये गैस का लेन 30 साल 40 साल पुराने हैं, बिल्कुल की है, ये किसी वक्त पढ़ सकते, बिल्कुल पानी का लेन 20 साल 30 साल पुराने हैं। बिल्कुल हमने कब मना किया कि भाई पुल ना बनाओ या सड़क ना बनाओ या पार्क ना बनाओ, वो अपना जगह, लेकिन जो पुराने हैं उनका भी तो मेंटेनेंस करो। लाला ठीक हो गया। अच्छा, साथ आपने एक बड़ा जबरदस्त बात किया, आप सिर्फ मुझे एंकर नहीं आपको इंजीनियर टैब भी लगता है, लेकिन आज मेरा बारी है, तू नहीं बोल। जी जी आपने कहा कि मैंने खुद आंखों से देखा और मैं आपके साथ मौके पर चला गया कि जनाब जितने लोहे का पैप था उनके साथ पीला रंग का प्लास्टिक का पैप भी उन्होंने डाला था, ये गैस वाले डाले हैं, गैस वालों ने डाले। साथ ही जनाब हमने देखा PTCL का केबल भी डाला गया। साथ हमने देखा था जनाब ये जो चैनल वाला केबल नहीं है, ये जो नेट मेट दिखाते इन्होंने भी डाले। तो मैंने और आपने कहा कि भाई अगर ये गैस वाला पैप को कहीं आग लग जाए तो बाकी 4 महकमे तो मुफ्त में 4 तारे बिक जाए, यानी इतना किसी को जिम्मेदारी नहीं है, नहीं कख भी नहीं है। अब बात किस्मत ये है कि इसको जो साइड पर कोई सुपरवाइजर टाइप बंदा होते हैं उसके ऊपर पैर छोड़ देते, उसके ऊपर सब इंजीनियर दफ्तर से न निकले, असिस्टेंट डायरेक्टर दफ्तर से बाहर न जाए, डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर से बाहर न जाए, डायरेक्टर दफ्तर से बाहर न जाए। आपको मैं केड़ा केड़ा बताऊं, ये D12 E12 के पास जाओ, वहां सड़कें बने 3-3 दिन बने, खुदा की कसम कड़े तबाही बर्बादी है। कुत्तों पे किया है यार, कुत्ते जो काट रहे हैं लोगों को, बावले हो। आपने कुत्ते का बात किया, मैं अब कल अल्फन कह रहा हूं, मैंने इस आंखों से आज से 30 साल पहला देखे जना सुपर में 10 मैंने गिनती किया, एक बंदे ने, पता नहीं अल्लाह वाला बंदा कौन था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 10 एयर कंडीशन मैंने देखे कुत्तों के लिए लगा था, लेकिन यहाँ इंसानों के लिए। परसों जब हम लोग गया, दुनिया का मीडिया गया, जब वहां गरीबों के जुआड़ बंदे मर गया, तो पता है क्या, ये नहीं मरले का 4 हिस्सा जगह पर उसका घर था, मरले का 4 हिस्सा। और ये हमारा, हमें कहते हैं सफाई ने से बेईमान है, और ये हमारे सरकारी महकमे के मुलाजिम थे। अच्छा, ऊपर से क्या देखो, वहां बड़े कदावर लोग गया, बड़े कदावर लोग गया, जिन्हें हमारा चेयरमैन सीडी बहुत बड़ा आदमी है, चेयरमैन सीडी है, बाइख्तियार है, और उसके बाद कमिश्नर है, फिर आगे चौधरी यासीन आ गया, उसने भी दुनिया के सामने हम 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। अभी जी सालक उस पे प्रोग्राम करके मैं देख रहा था, आप यकीन करो उस कमरे को देखकर तो रहने के काबिल तो है ही नहीं। लाला मेरी बात सुने, मैं बात आपकी काट रहा हूं। चेयरमैन साहब ने फरमाया कि हम इनको अकोमोडेट करेंगे, चलो तो कर भी ले, उनकी मेहरबानी है, कितने को करेंगे। हाँ, मैं सर करो, मैं चेयरमैन साहब से कमजोराना दरखास्त करता हूँ कि सर नीचे वाला आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके पास ये पढ़ के ये सड़कें ये भी बनाओ, ये दारुल खिलाफा बनाते जाओ, लेकिन इन ऐसे गरीबों के लिए, ताकि गरीबों को दुआ भी आपके साथ चला जाए और आपका ये काम नीचे लेवल पर भी हो। ये तो हो गया दर खत्म। अब चौधरी यासीन को ये चाहिए कि तूने काम 4 मकान देंगे, कराची में भी लोगों ने आपको देखे, पिशावर में भी, तो ये पहले भी तेरे मुलाजिमीन हैं, इनको पहले दे ना। अब ये तेरा मुलाजिम है, अब तुम उनकी वकालत करो, अब तुम लोग, हम खुश हैं, हम साथ हैं। नहीं, अब लोगों को ये भी बताओ कि क्या तू इस कमरे में गुजारा खुद कर सकते? जब गरीबों का वकील इस किस्म का हो कि मीडिया पर तो आके बड़े बातें करते, बड़ा हमदर्दी दिखाते, बड़ा, फिर उनको बताओ उस कमरे में शीशा नहीं है, उसमें रंग नहीं है, उसमें दरवाजा नहीं है, उसमें चोला नहीं है, उसमें जनाब गमज़ादा खानदान से इसके 2 जवान बच्चे गया या इसके 2 मेहमान वाले भी उड़ गए, सारे उड़ गया, तो जनाब वहां कैसे गुजारा करेगा? ठीक है, इसका काम है। आगे छोड़ो, आगे आते। अब ये मुझे बताओ, खुदा की कसम करके कहता हूं, अकेला इधर नहीं, कराची में खैबर पख्तूनख्वा में जनाब आटा 3000 से ऊपर होगा। आटे वाला आज फिर खत्म कर दिया, तो आटे वाला नहीं, मुझे मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं, मैं आप फिर दिखाता हूं। हाँ, मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं, G5 से शुरू हो जाएं, G9 तक चले जाएं। बिल्कुल, दरख्त जितने भी थे ना, जब मैं आया हूं लाला, इस्लामाबाद में 1971 था, मुझे चंगी तरह याद है कि बांग्लादेश अलहदा हुआ था, बिल्कुल, उस वक्त के ये दरख्त जवान थे। अब जितने भी मेलोडी, यानी इस्लामाबाद होटल के सामने वाली लैंड ले लें, एक दरख्त भी
करामत नहीं रहा, वो सारे वो गाड़ियों का अच्छा एक नुकसान- और भी मसला करते हैं, चलो हेन जो तो सही, ऑटो वाला को छोड़ो, ये मुझे बताओ साथ या की और बात करते हैं, ये नहीं जिम्मेदारों को मैं हैरान हूं, इनको अगर भर्ती दे को नौकरी दे को एनवायरमेंट के कोई डायरेक्टर या डीजी को, लाला सुनो, माजरत के साथ नहीं, ये नहीं, डेथ सुनो हो ना, चुका है। सुनो नो, मुझे एक बात बताओ, आम आदमी को पता है इसको डिग्री किस काम का, क्या इस महीने में पौधा लगते हैं? हाँ कोई अकलमंद ही नहीं लाला, पूरा ये पढ़ने मेरी वाला है। बात सुने, ये मैं जाके उधर दिखाऊंगा कि पहली बात ये है यार, उधर ट्रेक लगा दे, करामत लकड़ है, उसका साया भी ठीक है। हाँ देखें मेरी बात सुने, जिस एरिया का इंसान होता है ना, अब फर्ज की आप मारखोर जो है ना, अगर उसको इधर ला के करेंगे तो वो मरेगा। यार मुझे एक बात बताओ, हाँ मलक साहब आप माजरत के साथ, जी। आप मेरा उस्ताद है, जी। उस्ताद जी बात ये, आप 2 बजे सोए हुए, हाँ मैं मिसाल दे रहा हूं, हाँ तो मैं आपके सोए हुए सराने में बिरयानी भी रखूं और टिके भी रखूं, आपका किस काम का? काक भी आपको जो भूख लगे है ना, आपको हाँ। तो 2 रोटी गरम चाहिए, हाँ। पावे जनाब अंडे आमलेट के साथ खाओ। बिल्कुल बात ये कि ये दरख्त अगर लगाने, ये उस मौसम में लगाओ जो मौसम लगने का है। लगने का, ये अगले अभी तुम लगाओगे, ये डबल नुकसान होगा, फिर इस पे और बात रिलेटेड होते। ये जनाब फैसल सवालियात के जमाने में हमारा गरीबों का टैक्स पैसों का खजूर पे खजूरें लगाई थी। खजूरें लगाए थे, और हमारा अरबों रुपए हुआ, वो खजूर किधर गया? है? खत्म हो गया। उसके बाद जनाब शेरपाव खान की हुकूमत आ गया, E11 में G11 में, वहां पे जनाब शेरपाव खान ने लगाए, वो दरख्त भी तबाह बर्बाद हो गया, वो नहीं लगे। उसके बाद आ गया बारी, इधर से फजल चौधरी साहब अब भी जिंदा है, हाँ। इसने मरियम नवाज साहब को लाया, नवाज शरीफ साहब को लाए, और उन्होंने जनाब ये क्या नाम है, सरीना रोड वाला, सरीना रोड के ऊपर तरामड़ी शवा के सामने बेताशा लगाए थे, और उन्होंने कहा इधर पत्थर पिलाओ गपला, कुरान की कसम है वो दरख्त भी चला गया। सुनो प्यारे भाई, ये जेब से 10 का नोट खर्च नहीं करते। क्या? कोई वजीर जो है ना, मुझे पता शीशे है। का गिलास, अच्छा एक मैं वजीर सुनो, एक बोतल पानी का अपना घर से नहीं लेके आते, लेकिन गवर्नमेंट का खजाना है कि बेदर्दी से मैं आज एक और IMF का पैसा है, सोराम भी पट गया, IMF का पैसा है, ये लोग कार है। दूसरी बात ये कि मुझे बताओ, मैं यहाँ DC के पास गया, मैंने उसको बताया, सबको बताया, चुटिया के जनाब बरीमा में तुमने गरीबों का घर गिराए, दूसरा जनाब सेतपुर में तुमने गिराए, ठीक है तुम्हारा कानून है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन वहां कर सकते, G11 में कर सकते, उधर कर सकते। चेयरमैन CDA के दफ्तर और ये ज़रू पॉइंट तक एक परलंग का फासला नहीं है। कुरान की कसम, हम क्वार्टर वाला तबाह बर्बाद हो गया, लोग हमारा पीछे, लोग पस्टल एक कलाशों पे उठाते, इस मार्केट वाला बदमाश बना, गाड़ी नहीं गुजर सकते, ये उनके लाकानूनियत है। आगे से जनाब रोड पे जगह ही नहीं रही, रोड पे जगह ही नहीं रही, शरीफ आदमी गुजर नहीं सकते। कोई अपने लिए बीमार के लिए जनाब तुम वो रेंट वाला गाड़ी नहीं मंगवा सकते, क्या उसका नाम है, वो पैकिंग ड्रॉपिंग जो करते हैं, वो कहते हैं भाई उधर ऊबर क्रीम नहीं आ सकते। अब मेरा कहने का मकसद है कि चेयरमैन साहब एक छोड़ो उस बहस को, मीडिया वालों को भी बुलाओ। आज वहां कोई वजीर गया, भाई ये तो रेंट वाला वजीर है, रेंट वाला वजीर है, रेंट वाला वजीर ने भी कभी बात किया, क्या नाम है उसको छोड़ो। चेयरमैन साहब आप बहुत बड़ा आदमी है, अल्लाह आपको मुनसिब के सलाम है, आप कमिश्नर भी है, आप तमाम मीडिया वालों को बुलाओ, ठेकेदारों को बुलाओ। आप यकीनन हर जगह तो आप नहीं पहुंच सकते, आपने तो कम करने, लेकिन इन लोगों को बुलाओ कि भाई आओ इधर मेरा सामने कुरान पे यात्रा को असल बात क्या है, ठीक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पानी भी नहीं दूध नजर आना पे सारा जे कदे कोई जरा जा छेड़े था। अब इधर एक चैनल पर एक दूसरे पे लगे, वो कहते हैं चैनल, लेकिन अफरीन है, मैं फिर उसी जगह पर आता हूं। अगर उस वक्त आपके बात का कोई नोटिस लेता, आपने एक महीना पहला स्कूल के सामने वीडियो किया, मैं और आप थे कि जनाब 6 जगहों पर ढक्कन नहीं है, अगर वहां स्कूल का बच्चा गिर गया, मेरा मुंह से ये बलफ्ज निकले कि फिर हम FIR करेंगे, और करेंगे जरूर, ये हमारा राइट है। आज तक कोई बंदा उधर आए, कुरान के कसम किसी ने ढकना नहीं रखे, फिर जब उधर कोई बच्चा मर जाएगा, फिर मीडिया भी आ जाएगा, फिर जनाब उधर से जनाब पुलिस भी आ जाएगा, फिर वहां CDA चेयरमैन भी आ जाएगा, फिर अफसरान भी आ जाएगा, फिर किस काम का? अभी कोई करो नहीं, अभी कोई ढकना उठाओ, अभी शोकी का, नवाज शोकी का कोई टीवी का चैनल का कोई इलाज रखो, भाई ये तुम्हारा मुफ्त में ड्यूटी कर रहे, सारा दिन पेट्रोल अपना जला रहे, आपको निशानदेही कर रहे, मैं लाला आपके मुफ्त में वकालत कर रहा हूं। हमने इस मुल्क का पानी का है, जमीन धरती हमारा माँ है, ये महकमा हमारा माँ है, हमारा इज्जत है, चेयरमैन साहब हमारा सर का ताज है, हमने उस कुर्सी पर नहीं बैठना है, लेकिन हमारा बात को लोग सख्त होते हैं। हम कहते हैं ये ग्राउंड रियलिटी है कि भाई ढकने लगाओ, ये दरख्त बचाओ, ये धुआं खत्म करो, अल्लाह पर यकीन करो, टेक दिया कुरान की कसम है,
आपके पास 4-4 दिन हमारे पास वो कूड़ा उठाने वाला नहीं आते। हाँ हम कहाँ तो से यार मुझे कराची कंपनी से बंदे कॉल कर रहे हैं, सोकी साहब नहीं हमने आते। सुना है आप ये इशू उठाते हैं जी, जो सरकारी लोग था, तो ये कहाँ जाते हैं लोग जो इनके? सर्वर सरकारी लोग था, सर्वर सिंध उनका अफसर होता, हम उसको टेलीफोन करता था, उसको ट्रांसफर करता, हाँ कोई और करता। बड़ा अच्छा आदमी है, अब रिटायर हो गया, डॉक्टर है, वो तो जबरदस्त ड्यूटी कर रहा नहीं, उसके था। जब से सर्वर सिंध हो गया, न कोई पब्लिक पार्क में काम हो रहा है, सारे बंदे पुडरी बैठा हुआ है, न जनाब को और काम हो रहा है, न पब्लिक लेटरिन ठीक हो रहा है, न सफाई का काम ठीक हो रहा है। ये सारा ठेकेदारों ने अभी सोने पर कहता है ठेके अच्छा काम भी है, भी छोड़ दो, बेच दो, मोटरवे भी बेच दो, और क्या नाम है, बस पीछे रह गया तेरा और मेरा गुर्दे, पता नहीं इनका ठेकेदार कब आने वाला। गुर्दे तो वैसे ही खत्म हो रहा है, जरा पानी सीवरेज वाला मिला के पिलाने गुर्दा तो खुदा के कत्ल, लेकिन बाहर वाला महंगा लेते हैं, वो भी नहीं, बेवकूफ वो है। लेता है, वो चेक करके लेता है, वो जब हाँ। देखेगा कि ये तो वैसा ही खत्म हो- अल्लाह के नेक बंदे पोडरियों के साथ डॉक्टरों ने टेकी किया, खुदा दिक्कत हम उनके खून लेके असल खून बाहर बेचते, मरीजों को वो पोडरियों का खून लगा नहीं, जो भी करते हैं अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। शुक्रिया पर ये बस आखिरी लफ्ज करता जी। हूं, पाक परवरदिगार मुझे भी तौफीक दे, झूठ बोलना और मुनाफिकत करना ये इंतहाई ठीक है, जुर्म है, ठीक जुर्म है। है। मैं- हमको सच्ची मैं- बात की तरफ मैं- आना चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए। तो आपके मैं बहुत शुक्र बहुत शुक्रिया। मैं फिर चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा, पहले ये जो मैंने वीडियो दिखाई है ना, इसका पूछ लें कि एक वो गैस पाइप लाइन काट के लोहे की, बिल्कुल। उसके ऊपर, और फिर मतलब जो वापता की तारें जा रही हैं उनके ऊपर रखी गई है। मैंने फायर, पता चला है जी इनका कहां अफसर बैठता है, मैं पता चला जी फायर ब्रिगेड एटीएम वाला जगह पे, हाँ। उधर उन्होंने कहा जी नहीं ये तो उधर G6 में बैठता है, जी, बिल्कुल। उधर गया हूं, कहते हैं जी अफसर ही कोई नहीं। मैंने नंबर लेके उनको कॉल किया, उसने कहा छोड़ो यार इधर सारा चलता है। देखो मैंने उस वक्त भी वीडियो चलाई थी, मैं आज फिर बता रहा हूं, चेयरमैन साहब आप फरमा रहे हैं कमोडेट करेंगे, अच्छी बात है। और फिर मैं इसमें यह भी बता दूं कि आज मैं पढ़ रहा था किसी जगह पे कि दरख्तों पे शेरी रहमान साहबा ने भी नोटिस ले लिया उस सेनेट में, और कोई मतलब महकमा जंगलात वाले वो दूसरे में भी। मैं गुजारिश करूंगा, ये सारा सियासी बयान है। सियासी, जब मैंने रावल डैम का इशू उठाया है, उधर से दरख्तों का कत्लेआम हुआ है, तो उधर से वाइल्ड लाइफ वाली को मैडम भी जाती रही, और सेनेट की कैमा कमेटी जाके 3 दफा जब गई है, हम बड़े खुश हो गए हैं कि जनाब बड़ा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो मेरी बात सुन ले, पहले सुन लो, उसके बाद वो खामोशी हो गई। लोगों ने कहा सोकी साहब जो कुछ कहना था कह दिया है, उन्होंने ले लिया है कुछ, बस बात खत्म है। आज भी चले जाओ नजर आ ना, तो ये इन्होंने मीडिया पर चलने, तो इन्होंने फिर जागने। सर गए हैं ना, मैं वो क्या कार्ड में है, वो क्या सारी- इनका अपना ड्यूटी नहीं है? मैंने वो वीडियो में दिखाया था, हाँ, उधर से लोगों ने वीडियो और सुना है कि उनके एक दफा तो खून खुश्क हो गए हैं ना, जो उधर करप्शन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी खाना नहीं खाएंगे खाना। उसके बाद क्या हुआ है, वो केस ठप गया है, और वो इन्होंने कत्लेआम किया है वो तारीखी जगह का, जो आने वाली नस्लें भी देखती कि इधर क्या होता रहा। मुझे 1 सेकंड का बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकंड नहीं लंबा नहीं करता हूं। मैंने सुने, मैं कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हूं, लेकिन एक आलिम से सुने कि अगर क्यामत भी हो ना, क्यामत, और आपके हाथ में पौधा हो या तो आप कोशिश करें कि उस पौधे को लगाए, पावे क्यामत आ जाए, लेकिन पौधा लगा दे। जंग के हालात में हुक्म है कि पौधे को नहीं काटने, पौधे को नहीं काटने, औरत को नहीं चढ़ने, बच्चे को नहीं चढ़ने, तो पौधे का इतना इंसानी कत्ल के बराबर है, इंसानी कत्ल के बराबर है। परसों गया हूं फतेह जंग में, हाँ। तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार इस्लामाबाद को इन्होंने गंजा कर दिया। यार इस्लामाबाद दारुल खिलाफ है, हम सब लोगों को शेयर है, तो कत्ल के बराबर है। टाइम हो गया जी। नाज़रीन कमेंट्स में जरूर बताना, नेक दुआ देना, सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।